All right. So now we'll be studying chapter number 27, that is economic issues. And this chapter is very much related uh, with economics as well. So first of all, the concept of government economic objectives. Now, you know the main job of the government is to manage the economy in such a way that it must provide benefit to all the people living there. So to have this, government sets different objectives. We call them macroeconomic objectives. And to achieve them, government has different strategies. But before we move on to those strategies, we need to discuss the purpose of setting these objectives. We'll be discussing these objectives one by one. So first of all, there is the objective low price inflation. पहले तो इसका समझना जरूरी है कि what does it mean? Low price inflation means when prices rise at a lower pace, at a lower speed. Low price inflation does not mean that prices are falling. या अगर मैं ये भी कहता हूं कि inflation is falling, it does not mean prices are falling. Reason is because inflation is the rate of increase in price. जैसे कि मैं, let me give you an example. Let's say you are driving a car and you are moving forward. The car is running at 80 kilometers per hour. So after some time, you reduce the speed of the car by 20 kilometer, and now your speed is 60 kilometer per hour. आपने speed को reduce किया, तो गाड़ी क्या पीछे जा रही है? No. No. Same is the case with inflation as well. As long as inflation is positive and inflation कम हो ज़्यादा हो, it does not mean that prices are falling. Yes, we can say if inflation is rising, it means that the prices are rising rapidly. When inflation is falling, prices are still rising, but now they are rising slowly. So remember this concept that inflation always leads to increase in price. Does not matter whether it is low inflation, high inflation, rising inflation, or falling inflation. Got it? Yes. Now, what is the point of setting low price inflation as government economic objective? There are harmful effects when prices rise rapidly, or that is why government wants to control that. और उसके लिए क्या करती है? Wants price to increase slowly. ये नहीं कि गवर्नमेंट चाहेगी कि प्राइसेस कम हो जाए. मैंने आपको बताया उसकी एक वजह है. गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती प्राइसेस कम हो. गवर्नमेंट कहती है प्राइसेस बढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता. आपको पता है क्यों? Why government does not want to reduce prices? वो तो अच्छी बात है, प्राइसेस कम होंगी तो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, वो अफोर्डेबल हो जाएगा, वो ज्यादा आसानी से चीजें लेंगे. क्या ख्याल है? सर लेकिन फिर अगर प्राइसेस रिड्यूस होगी तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के प्रॉफिट रिड्यूस होंगे, और प्रॉफिट रिड्यूस होंगे तो फिर गवर्नमेंट का टैक्स रिड्यूस हो जाएगा. ओके, ऑल राइट, ओके, गुड. अदर देन वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं. तो आप पहले भी एक बात कर सकती थी कि when prices fall, it tends to discourage producers, because you know in economics we study when price falls, supply also falls. Supply comes from producers. So when price would fall, it would discourage producers. They would reduce the amount of output being produced. So it means goods won't be available to the people. चाहे लोगों के पास अब पैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन अगर चीजें मार्केट में आ ही नहीं रही, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, बल्कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, बिकॉज अब चीजें बन ही नहीं रही. और जब चीजें बनेंगी नहीं, ऑफ कोर्स उसे टैक्स भी कम आएगा. जब चीजें बिक नहीं रही, बन नहीं रही, और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब चीजें बन नहीं रही तो देयर इज नो पॉइंट हायरिंग एम्प्लॉइज. अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, तो उससे इकोनॉमी जो है ना वुड रीच टू अ डिजास्टर. तो वो कोलैप्स कर देगी इकोनॉमी. इसलिए फॉलिंग प्राइसेस कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डिफ्लेशन, या इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है प्राइसेस आर फॉलिंग. तो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का नहीं होता. अच्छा, अब हार्मफुल, अगर हम, अच्छा, लो प्राइस इन्फ्लेशन हमेशा फायदे में होती है, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ. एक तो प्राइसेस बढ़ती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो प्रोड्यूसर भी खुश,
और कंज्यूमर में खुश, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ती है ईयरली बेसिस पे, लेकिन कंज्यूमर की इनकम प्राइसेस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए इवन इफ प्राइसेस आर राइजिंग, इट डज नॉट, ये प्राइसेस डू नॉट बॉदर द कंज्यूमर एट ऑल, क्योंकि उनकी आमदनी प्राइसेस के इजाफे से ज्यादा है, तो इसलिए वो स्टिल दे आर एबल टू बाय। और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो रहा था क्योंकि कीमतें बढ़ रही होती। अच्छा, लेकिन हाई इन्फ्लेशन या राइजिंग इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। जब प्राइसेस तेजी से बढ़ती है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या आ रहा है, पहले आ जाता है रियल इनकम फॉल्स, दैट मींस लेस कैन बी बॉट विद गिवन इनकम। तो आपने याद रखना है, जो रियल इनकम होती है ना, रियल का वर्ड जब आ रहा है, तो इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन, द परचेजिंग पावर ऑफ द इनकम, या हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट विद द इनकम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक और टर्म इस्तेमाल होती है मनी इनकम और नॉमिनल इनकम, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब आपने, मैं इसको ना, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। ये देखें जी, लेट से कि एक बंदा है, ये इनकम को ना वाई से शो करते हैं, उसकी इनकम 50,000 है, ठीक है। और लेट से जो कीमत है ना एक चीज की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो है लेट से 1,000 के बराबर। एक चीज आती कितने की, 1,000 की। तो वो अपनी 50,000 की इनकम से कितनी चीजें खरीद सकता है, बता दो। वो खरीद सकता है 50 आइटम्स कैन बी बॉट, और एक आइटम जहां पर 100 रुपए की है, ऐसे ही है। यस। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये है लेट से ईयर 1, ये क्या है जी, ईयर 1। अच्छा, दूसरे साल क्या हुआ कि इनकम जो है ना वो तो यही है, और जो कीमतें थी वो हो गई अब 2,000। अब कितनी चीजें आएंगी, 25। 25, वेरी गुड। पहले 50 आ रही थी, अब 25 हो गई। मुझे बताओ, क्या इनकम में कोई चेंज आया? नो। नो। इसका मतलब है इनकम उतनी है। तो ये जो इनकम हमें नजर आ रही है, दैट इज 50,000, वी कॉल इट मनी इनकम या नॉमिनल इनकम। मतलब इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी, या इनकम इन मनी टर्म्स इज कॉल्ड मनी इनकम या नॉमिनल इनकम, वो तो उतनी है। लेकिन in terms of purchasing power, now the income is not able to buy the same amount of goods and services which the person was able to buy with this income, right? यस। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि the real income has gone down, और ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे नजर आ रहा है कि कीमतें एकदम से बढ़ के डबल हो गई। तो इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो तेजी से गिरता है, क्योंकि अब उनको सेम अमाउंट ऑफ गुड्स बाय करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। अगर वही चीजें आपने लेनी है तो कितने पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे उनको, 1,00,000 रुपया खर्च करना पड़ जाएगा। अगर 50 चीजें लेनी है, देखो ना, अगर 50,000 में 25 चीजें आ रही हैं, जबकि पहले वो 50 चीजें आ रही थी, तो अब अगर 50 चीजें लेनी है तो उनको उसके लिए 100,000 खर्च करने, डबल द अमाउंट, जो पीपल माइट नॉट हैव इट। और वो, इसका मतलब है वो उनकी चीजें पहले से कम आएंगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। गॉट इट? यस। वापस चलते हैं। तो एक तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया कवर। दूसरा पॉइंट, एक्सपोर्ट्स विल बिकम अनकंपैरेटिव बिकॉज ऑफ हाई प्राइस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये समझ आती है? ऑफ कोर्स, अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है, कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, तो व्हाई वुड पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम योर कंट्री? दे वुड लाइक टू बाय फ्रॉम some other country where the same goods are available at a cheap rate, at a low price. जैसे मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में आपको पता है कि फॉर्च्यूनर कितने की आती है? नो। अच्छा, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना, लाइन वेरिएंट है सिग्मा 4, वो 1.5 करोड़ से ऊपर का है, 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। और इंडिया में यही गाड़ी जो है ना वो 50 लाख की भी नहीं है, 50 लाख की भी नहीं है।
तो आप इमेजिन करो वजह क्या है, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है इज अ लॉट लोअर देन द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान बाय पीपल। तो ऑफ कोर्स फिर लोग पाकिस्तान से क्यों बाय करेंगे, वो इंडिया से ले लेंगे। क्या ख्याल है, समझ आ रही है ना? यस। तो एक्सपोर्ट्स आपकी हो जाएंगी कम। अच्छा, एक बात आपको मैंने और बतानी है यहाँ पर, एक्सपोर्ट्स क्यों जरूरी होती हैं, आप बता सकती हो मुझे? ना करो एक्सपोर्ट्स। सर टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज क्यों जरूरी है? ना लो फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास हमारी करेंसी है। सर टू बाय इम्पोर्ट्स। वेरी गुड, टू बाय इंपोर्ट्स। फॉरेन करेंसी के बगैर हम इंपोर्ट बाय नहीं कर सकते। गुड। तो इसका मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी अगर वो चाह रहे हैं कि वो सक्सेसफुली रन कर सके, तो उनके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व होना जरूरी है। राइट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फॉल इन डिमांड विल रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ जॉब्स। कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी और लोग नहीं खरीदेंगे, लोकल लोग भी नहीं खरीद पा रहे, बाहर के लोग भी नहीं खरीद पा रहे, तो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन जो है वो स्क्वीज कर जाएगी एंड मैनी पीपल वुड लूज देयर जॉब्स, जिससे पॉवर्टी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो और मजीद लो हो जाएगा। दूसरा, तो इसीलिए हमें लो प्राइस इन्फ्लेशन का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट रखती है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव दैट, क्योंकि अगर लो इन्फ्लेशन नहीं होगी, हाई इन्फ्लेशन होगी या राइजिंग इन्फ्लेशन होगी, तो ये तीन डिसएडवांटेज इकोनॉमी को फेस करने पड़ेंगे, एंड दीज आर ह्यूज डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमी इसमें कोलैप्स कर सकती है। फिर आ गया हमारे पास लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट को लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे रखें, जितना कम हो सकती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू all those people who are willing to work, people who are willing to work but unable to find jobs, resulting into falling outcomes। मतलब, अच्छा यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ कि people who are willing and able, ये भी जरूरी है ना कि willing तो है, लेकिन अगर बंदे की कोई फर्ज की इंजरी हुई भी है, मेंटली साउंड नहीं है, फिजिकली वो चैलेंज्ड बंदा है, तो वो तो एबल ही नहीं ना है, तो वो तो फिर अनएम्प्लॉयड कहलाता ही नहीं है। तो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, विलिंग एंड एबल टू वर्क, मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ एबल टू वर्क, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो उसका नुकसान क्या होने वाला है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन लोअर आउटपुट। अंडर यूटिलाइजेशन मींस कि रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता था फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री, लेकिन वो नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ मोर आउटपुट। ज्यादा आउटपुट बनेगा तो ज्यादा लोगों की नीड वांट पूरी होंगी और लिविंग स्टैंडर्ड ओवरऑल इंप्रूव कर सकता है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है? सर जो ह्यूमंस हैं जो वर्क कर सकते थे। ह्यूमन, तो यानी कि लेबर ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है ना जिनको रिसोर्सेज बोलते हैं, तो लेबर। अच्छा, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, आपकी आउटपुट कम रहेगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी आपको पता है गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। आपको पता है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होता है? नो सर। अच्छा, याद रखें, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर against which nothing is produced in the form of good or service. Like you are paying me a certain amount on monthly basis, and as a result, I am providing you the service. It's a productive expenditure. You spend money on construction of road. Okay, and you are getting something in the form of road. ये है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड। व्हेन दिस डज नॉट हैपन, यानी कि खर्चा तो किया जा रहा है लेकिन जवाब में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही, प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, भला पता है? नो सर। नहीं, ये होता है कि नॉर्मली ये वेलफेयर स्टेट्स ऑफर करती हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, यूके हो गया। तो इनमें ये होता है कि व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड, they are paid a certain amount to meet their basic necessity as long as they are unemployed, and it is paid by the government। तो हमारे यहाँ तो खैर नहीं होता ऐसा, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो इमेजिन करो, इफ देयर आर मोर पीपल अनएम्प्लॉयड, सो
larger amount would be given as unemployment allowance to the people, and it will add to higher non-productive expenditure. और it has an opportunity cost कि वो पैसा जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज पे स्पेंड करती है और उससे हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव करती, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल की शक्ल में या एजुकेशन में खर्च करती और उससे क्या कहते हैं इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट हो जाता, तो वहां पर अब खर्च नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे ये तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। आप खर्च कर रहे हैं लोगों पे क्योंकि उनको अब जिंदा भी रखना है, तो आप उनके खाने पीने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है एंड इट हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि गवर्नमेंट को दूसरे अपने प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर हैं या जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा या रोकना पड़ जाएगा, तो जो कि इकोनॉमी की या पीपल इन द कंट्री के फेवर में नहीं जाता। सही हो गई बात? यस। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ सोशल इवल सच एज स्ट्रीट क्राइम। यस, इफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयड तो हो गए हैं तो क्या जिंदा नहीं रहना, फैमिली है उनके बच्चे हैं तो उनको जिंदा तो रहना है, उसके लिए फिर दे रिजॉर्ट टू क्राइम्स। उसमें करप्शन भी हो सकती है, उसमें रॉबरी, डिकॉइटी, रोड स्नैचिंग, कुछ भी हो सकता है जिससे उन्होंने तो सरवाइव करना है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल के अफ्रीका में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर जैसे कि मैं अगर बात करूं केनिया की, तो केनिया में ऐसे इलाके, नायरोबी को ले लिया, तो ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस भी कहती है कि डू नॉट गो बियॉन्ड दैट एरिया, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो इवन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों? वहां पर यही होता है कि लोग जो है वो अटैक करते हैं एंड दे स्नैच थिंग्स और वैल्यूएबल्स और बिलोंगिंग्स फ्रॉम यू, बल्कि वहां पर तो कांटों पे बालियां हो ना वो भी खींच लेते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट फेल्स टू फीड द पीपल लिविंग इन देयर कंट्री। तो वो अब उन्होंने जिंदा रहना है तो कुछ तो करेंगे वो। तो सोशल इवल्स में फिर और ऑफ कोर्स बैड रेपुटेशन अर्न करता है वो कंट्री, और फिर वो प्रॉब्लम फिर आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज की मौजूद है। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ पॉवर्टी और अनलेस एंड अनटिल दे आर सपोर्टेड बाय डेवलप्ड नेशन, जो कि नहीं किया जा रहा। तो अच्छा, फिर लोअर लिविंग स्टैंडर्ड आ जाता है। ऑफ कोर्स के लोग अपनी पसंद की चीजें बाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है और उनको दे मस्ट रिजॉर्ट टू बेसिक नेसेसिटीज ओनली, वो भी लो क्वालिटी के आइटम जो इजीली अफोर्डेबल हो, तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का लो हो जाएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट में लोग ज्यादा चीजें खरीद भी नहीं रहे, तो जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं इनकम से, पीपल आर अनएम्प्लॉयड तो इनकम तो जनरेट हो नहीं रही, चीजें भी कम खरीद रहे हैं, तो जो चीजों पे टैक्स लगता है दो तरह से ही होता है ना, या इनकम या प्रॉफिट पे लगता है या चीजों पे लगता है। जैसे हम होटल जाते हैं तो वहां पर भी टैक्स देते हैं, मोबाइल का कार्ड चार्ज करते हैं तो वहां पर भी टैक्स देते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं तो उसपे टैक्स होता है। तो जब चीजें बाय करना कम कर दिया बिकॉज ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट, तो वहां से भी टैक्स नहीं आ रहा, फिर लोग इनकम नहीं कमा रहे, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो वहां पर भी और क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि लोग चीजें बाय नहीं कर रहे, तो वहां से भी टैक्सेस नहीं आएंगे। और टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसके बगैर अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट लुक आफ्टर देयर पीपल, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें। फिर हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हम इसको बोलते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव आ गया कि गवर्नमेंट, तो हम ये क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है लो प्राइस इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्यों अचीव करना जरूरी है? क्योंकि अगर ये अचीव नहीं होंगे तो क्या होगा? वी डिस्कस द आउटकम्स ऑफ इट। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसमें हमने डेफिनेशन देखी है क्या? इंक्रीज इन द रियल आउटपुट। आपको पता है इसका क्या मतलब है? नो नहीं सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, तो हम इसको देख लेते हैं अभी जरा एग्जाम्पल से। ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ोगी ना या पढ़ रही हो तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि लेट्स से कि एक कंट्री है, कंट्री ए, और लेट्स से कि ईयर वन में कंट्री ने प्रोड्यूस कर रही है टोटल आउटपुट, लेट्स से 1000 यूनिट्स, 1000 चीजें बना रही है। अच्छा ओके, और एक चीज की कीमत जो है वो है 100,
तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, कितनी वैल्यू हो गई है? 100,000। जी 100,000। मतलब हम कहेंगे कि कंट्री की जो आउटपुट की वैल्यू है वो इतनी है। अब ईयर 2 में क्या हुआ कि चीजें वही बन रही है 1000, और अब एक चीज की वैल्यू जो है वो हो गई है 200। तो अब कितनी वैल्यू की आउटपुट है ये? 200,000। 200,000। तो अब हम ये कहेंगे कि कंट्री की आउटपुट बढ़ गई, हम कह सकते हैं? यस। नो, क्योंकि आउटपुट तो देखा जाए तो वही है, वो प्राइस के बढ़ने से वैल्यू इन्फ्लेट कर गई है, बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ी है, प्राइस बढ़ने से वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या अब मोर पीपल वुड गेट द बेनिफिट? अगर अब 200,000 की आउटपुट की वैल्यू हो गई है, क्या ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं? नो। तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हुई। इकोनॉमी तो इसको बोल रहे हैं हम, ये जो हम कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रियल आउटपुट रिमेन द सेम, रिमेन द सेम। और फिर हम कैसे कैसे निकालते हैं कि हम रियल आउटपुट निकालने के लिए प्राइस को चेंज नहीं करते। तो अगर पहले प्राइसेस 100 थी, तो अभी भी आप प्राइसेस को 100 ही रखेंगे, इसको 200 नहीं करेंगे, 100 ही रखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो वैल्यू क्या वही नहीं आएगी? है ना? वो बोल दो। यस। हाँ, तो इसका मतलब है रियल आउटपुट जो है वो तो सेम रही। रियल आउटपुट इस तरह से निकलती है, क्या एक्चुअल जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं दैट आर बीइंग प्रोड्यूस इन द कंट्री, वो बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, बाय कीपिंग द प्राइसेस कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं रियल आउटपुट। जो हमें ये 100,000 से 200,000 नजर आ रहा है, ये रियल आउटपुट नहीं बढ़ी, ये हम कहेंगे नॉमिनल आउटपुट बढ़ गई। नॉमिनल मतलब आउटपुट इन मनी टर्म्स, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इन मनी टर्म्स वो बढ़ गई, लेकिन जो रियल आउटपुट है वो उतनी की उतनी है। तो जब तक रियल आउटपुट नहीं बढ़ती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। समझ आ गई? यस। अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों चाहते हैं, उसका क्या रीजन है? पहला, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है मोर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो फॉर दैट यू रिक्वायर मोर वर्कर्स, more people will be hired, leading to greater employment opportunities, और लोगों को जॉब मिलेंगी और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट? यस। और राइट, इसी तरह से इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स रिजल्टिंग इन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही है, जरा बताओगे मुझे? इकोनॉमिक ग्रोथ से एक्सपोर्ट्स का क्या ताल्लुक सर क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो गया है तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि शॉर्टेज नहीं है। तो प्राइस डिक्रीज होगी तो एक्सपोर्ट्स भी उसकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी तो जो फॉरेनर्स है वो ज्यादा खरीदेंगे। है? ये भी बात आपकी सही है। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स आर द आइटम्स विच आर in excess than the needs of the people। लोगों की जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो कंट्री माइट बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो एक्सेस अमाउंट को बाहर भेज देंगे, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि इंप्रूव करेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट कम होंगी। और फेवरेबल होने से ये होता है कि आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा आते हैं और जाते कम है, क्योंकि इंपोर्ट्स में करेंसी रिजर्व कम होते हैं आपके पास जो होते हैं, और एक्सपोर्ट्स में करेंसी रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
तो इससे रिजर्व बढ़ेंगे और वो कल को आपको अगर इम्पोर्टेड आइटम और भी लेनी होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्केरी चीज, स्केरी सिचुएशन नहीं होगी। ठीक हो गया? यस। फिर हायर लिविंग स्टैंडर्ड एज पीपल विल हैव वैरायटी ऑफ गुड्स टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। ये भी समझ आती है, ज्यादा चीजें बनेंगी तो पहले लोगों के पास चॉइस ज्यादा नहीं थी या कुछ लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, नाउ दे वुड आल्सो बी एबल टू बाय द गुड्स क्योंकि अब वो अवेलेबल है। और ऑफ कोर्स प्राइसेस भी कम होंगी जब चीजें ज्यादा बनेंगी तो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। और आखिरी टैक्स रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो और टैक्सेस ज्यादा आएंगे क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं, तो बिजनेस के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगेगा, एम्प्लॉइज की इनकम पे भी टैक्स लगेगा। और जो चीजें बाय कर रहे हैं क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो पीपल टेंड टू बाय मोर, तो जो चीजों पे टैक्स लगता है उससे भी रेवेन्यू आएगा, तो गवर्नमेंट वुड बी कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ टैक्स रेवेन्यू दैट वुड लेटर ऑन बी स्पेंट ऑन द पीपल या पब्लिक वेलफेयर। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे हैं, इसलिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। गॉट इट? यस सर। All right, that is for today. So we'll see you in the next class.